تعالیٰ نے انسانیت کی بقا کے لیے، انسانوں کو باقی رکھنے کے لیے نکاح جیسا پاکیزہ اور ممتاز رشتہ رکھا۔ جب دلہا دلہن کے پاس آئے اور تنہائی ہو تو سب سے پہلے دلہن اور دلہا دونوں وضو کر لیں اور پھر جائے نماز یا کوئی کپڑا بچھا کر 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھیں۔ شکرانے کی نماز اس طرح پڑھی جائے کہ دلہا آگے ہو اور دلہن اس کے پیچھے ہو۔ اس بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے۔ ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ان سے بیان کیا کہ میں نے ایک جوان لڑکی سے نکاح کر لیا ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے پسند نہیں کرے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ محبت و الفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور نفرت شیطان کی طرف سے۔ جب تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ تو سب سے پہلے اس سے کہو کہ وہ تمہارے پیچھے 2 رکعت نفل نماز پڑھے۔ انشاءاللہ تم اسے محبت کرنے والی اور وفا کرنے والی پاؤ گے۔ اس حدیث کو غنیۃ الطالبین صفحہ نمبر 115 میں بیان کیا گیا ہے۔ اب سہاگ رات کا طریقہ کیا ہوگا، یعنی خاص دخول کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، یعنی تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تم ان میں جس طرح چاہو آؤ۔ انا کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک انا شئتم کا معنی کیف شئتم، کیف ما شئتم، اور انا شئتم کا معنی حیث ما شئتم۔ کیف ما شئتم کا مطلب ہوتا ہے جس طرح سے چاہو، اور حیث ما کا مطلب ہوتا ہے جہاں سے چاہو۔ جہاں سے چاہو کا مطلب یہ ہوگا کہ 2 باتیں ہیں، ایک جہاں سے کا مطلب ہوا آگے کے مقام سے، اور ایک مطلب ہوا کہ پیچھے کے مقام سے، جہاں سے تم چاہو دخول کر سکتے، اور دوسرا مطلب ہوتا ہے یعنی جیسے چاہو، یعنی اس دخول کے لیے، اس خاص عمل کے لیے تو آگے کا مقام ہی ہے، لیکن اس آگے کے مقام میں تم جیسے بھی چاہو دخول کر سکتے ہو۔ اب اس بارے میں مذہب کیا ہے، حقیقت کیا ہے، تو سب سے پہلے تو میں آپ کو فقہی مسلک بتا دوں تو بالاتفاق چاروں ائمہ کے نزدیک صرف اور صرف اپنی بیوی کے ساتھ آگے کے مقام میں ہی صحبت کرنا جائز ہے، اور پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا حرام ہے، تمام مذاہب اہل سنت کے نزدیک۔ لیکن شیعہ اس معاملے میں مختلف ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پیچھے بھی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنا جائز ہے، معاذ اللہ۔ اب یہ چیز خراب ہے یا صحیح ہے، اس کو ہم دلیل کی روشنی میں جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی جو شخص اپنی بیوی کے پیچھے کے مقام میں آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک شخص پیچھے کے مقام میں آ رہا ہے تو وہ شخص غلط کام کر رہا ہے، اور ویسے بھی قوم لوط کے بارے میں جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ پڑھ لیں تو قوم لوط کا معاملہ یہ تھا کہ وہ لوگ صرف لڑکوں کے ساتھ، اور لڑکوں کا تو پیچھے کا ہی مقام ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیا کرتے تھے غلط کام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا، ایسا عذاب نازل فرمایا کہ ان کی بستیاں الٹ کر پلٹ دیں، اٹھا کر کے اوپر لے جا کر کے ان کو پٹک دیا گیا زمین میں، الٹا دھسا دیا گیا زمین کے اندر۔ تو یہ بہت ہی برا عمل ہے، چاہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے مسلمانوں کہ نکاح کا مقصد اپنی خواہشات کو ہی پورا کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ نکاح کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہم اولاد کو حاصل کریں، اولاد کا حصول ہو، اور وہ امت محمدیہ کے بڑھنے کا سبب بنے، انسان کے بڑھنے کا سبب بنے۔ تو اولاد کا حصول مقصد ہوتا ہے، اور اولاد کا حصول یہ پیچھے کے مقام سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو پیچھے کے مقام میں کرنا ایک تو بلا وجہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، اور کھیتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی بیج بوتا ہے تو پھل کی امید رکھتا ہے۔
तो फल की उम्मीद पीछे के मकाम में हरगिज नहीं हो सकती, सिर्फ आगे के मकाम में ही हो सकती है। लिहाजा पीछे के मकाम में सोहबत करना बिल्कुल भी जायज नहीं है। अब अगर पीछे के मकाम में सोहबत करना जायज नहीं है और एक शख्स पीछे के मकाम में सोहबत करे तो ऐसी सूरत में क्या हुक्म है, तो इस बारे में बहुत तफसील है। अइम्मा किराम का इस बारे में बहुत अलग अलग अइम्मा किराम ने इस बारे में बहुत सी बातें बयान फरमाई है, सजा के तौर पर भी। अब अगर कोई शख्स ये देखे कि उसकी बीवी आज रात, यानी जिस रात उसकी शादी हुई है उसी रात वो औरत हमल से, वो औरत हैज से है, हैज की हालत में है अगर वो औरत, तो ऐसी सूरत में उससे वो सोहबत करेगा या नहीं। तो इससे पहले जो काम बताए यानी दुआओं का पढ़ना, तो उसको पकड़े दुआ पढ़े और पेशानी पकड़ करके दुआ पढ़े। इसी तरह नमाज पढ़ना, तो चूंकि औरत तो नमाज पढ़ नहीं सकती क्योंकि हैज की हालत में है, लेकिन मर्द उस दिन नमाज शुक्राने की अदा कर ले और औरत ना पढ़े। लेकिन चूंकि हैज के अय्याम में अपनी बीवी से भी सोहबत करना हराम है और अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, सूरह बकरा के अंदर है, यसअलूनका अनिल महीद कुल हुवा अदन फअतज़िलुन निसाअ फिल महीद वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरना। ऐ रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपसे लोग पूछते हैं हैज के बारे में, आप फरमा दीजिए कि वो अज़ा है, गंदगी है, तकलीफ दे चीज है। फअतज़िलुन निसाअ फिल महीज, तो औरतों से हैज की हालत में अलग हो जाओ, यानी औरतों से हैज की हालत में जिमा ना करो। वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरना, और इसका आगे फरमाया कि और उनके करीब ना जाओ, उनसे कुर्बत ना करो। कुर्बत से मुराद यहाँ पर जिमा है, हत्ता यतहुरना, यहाँ तक कि वो पाक हो जाए। अब हैज क्या होता है, तो औरतों के, बालिग औरत को आगे के मकाम से जो खून आता है वो होता है जिसको एमसी कहा जाता है, और इस बारे में आप डिटेल पढ़ सकते हैं। और अगर इस बारे में तफसील जाननी हो तो बहुत सी उर्दू किताबें भी मुहैया है, और फिर भी अगर आपको और मालूमात हासिल करनी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो अगर औरत हैज की हालत में है तो ऐसी सूरत में उससे जिमा नहीं कर सकते हैं। अब जिमा नहीं कर सकते हैं तो कब करेंगे, तो औरत हैज से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, यानी ज्यादा से ज्यादा उसको 10 दिन लग सकते हैं। तो उस 10 दिन के अंदर वो पाक हो जाएगी, पाक होने के बाद ही जिमा कर सकते हैं, उससे पहले उसके साथ सोहबत और जिमा नहीं कर सकते हैं। तो अब अगर इस एक इंसान की ख्वाहिश है और वो उससे अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है, हो सकता है कि पहली रात या नई नई शादी हुई है और कोई भी शख्स बर्दाश्त ना कर सके, अपने शहवत को काबू में ना ला सके, और हो सकता है कि वो किसी गुनाह में मुलव्विस हो जाए, तो अब ऐसा शख्स क्या करे। तो उसके लिए शरीयत इस्लामिया ने हमें ये भी तरीका बताया है कि औरत अपने नीचे के हिस्से में, यानी नीचे नाफ से लेकर के घुटने तक वो कोई कपड़ा अच्छे से बांध ले, यानी वो जो कपड़ा पहनती है पाजामा वो अच्छे से उसको बांध ले, और मर्द उसकी तरफ बिल्कुल भी तवज्जो ना करे। और बाकी हिस्सों में, बाकी हिस्से से मुराद गर्दन से नीचे, क्योंकि ये बहुत ही मुबारक और मुकद्दस एरिया माना जाता है, तो गर्दन से नीचे का जो हिस्सा है उसमें उसमें वो अपनी शहवत को पूरा कर सकता है। यानी अगर वो चाहे तो अपनी शहवत को, क़ज़ाए शहवत के लिए ये कर सकता है कि गर्दन से नीचे अपनी शहवत को पूरा कर ले। गर्दन से नीचे शहवत पूरा करने की उसको शरीयत की तरफ से इजाजत है। अब वो किस तरह पूरा करे, तो उसका बस वही, उसकी कंडीशन यही है कि वो वहां ना जाए जिस जगह पे जाने से मना किया गया है, यानी पिछला मकाम, वहां ना जाए। तो पीछे आगे पूरा घुटने तक उसको बंद कर लेना है ताकि मर्द वहां तक ना जाए। और उसके बहुत से तरीके निकाले जा सकते हैं कि हम क़ज़ाए शहवत कैसे करें, अपनी शहवत को की आग को किस तरह बुझाएं, उसके तरीके निकाले जा सकते हैं। बस इतना होना चाहिए कि वो उस मकाम में, यानी आगे और पीछे के मकाम में, पीछे के तो बिल्कुल नहीं और आगे के मकाम में भी नहीं, क्योंकि कुरान करीम से सराहतन ये चीज मना कर दी गई है, अपनी बीवी के साथ भी नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा उस वक्त तक अपनी बीवी से सोहबत नहीं कर सकता है जब तक कि वह हैज से पाक न हो जाए।
अब जब हैज से पाक हो गई उसके बाद वो उससे सोहबत कर सकता है। अब सोहबत करने के जो तरीके हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं और बहुत से तरीके, जो भी तरीका अपनाए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, फातु हरसकुम अन्ना शिअ्तुम, यानी तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती हैं, तुम अपनी खेती में जिस तरह से चाहो आओ, यानी जैसे भी जो भी तरीका इस्तेमाल करें वो गलत नहीं है, यानी शरीयत उसे नापसंदीदा करार तो नहीं देती है, यानी हराम नाजायज तो नहीं कहती है, लेकिन तरीका बेहतर से बेहतर हो, ऐसा तरीका हो जिससे कि अपने पार्टनर को किसी तरह से भी परेशानी ना हो, ऐसा तरीका हो तो वो तरीका आप। पहली रात को अब जब हम बिस्तर हो रहे हो तो हम बिस्तर होने के वक्त दुखूल से पहले, यानी शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद अब वो बाकी के काम अंजाम दे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े वो इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और वो दुआ जब आप पढ़ लेंगे तो आपके साथ शैतान शरीक नहीं होगा और इंशाअल्लाह ताला बेहतर औलाद पैदा होगी। और जब उसके बाद दुखूल कर रहे हों और वक्त ऐसा हो रहा हो कि अब इंजाल होगा, तो ऐसी सूरत में आप इंजाल के वक्त, इंजाल होने के फौरन बाद, इंजाल का मतलब ये होता है मनी का बाहर आना, तो जब मनी बाहर आने वाली हो उस वक्त फौरन ही आप अलग ना हो जाएं, बल्कि बाद थोड़ी देर तक वहीं पर खड़े रहें, यानी उसी में ठहरे रहें और अपने आले को और अपने ज़कर को बाहर ना निकालें, बल्कि उसी में छोड़ दें, क्योंकि औरतों के साथ ऐसा मामला होता है कि उनकी शहवत देर से पूरी होती है, उनकी ख्वाहिश देर से पूरी होती है, लिहाजा उसका भी ख्याल रखें। ऐसा ना करें कि आपका काम तमाम हो गया और आप हट गए, इससे ये होगा कि आपकी बीवी को आपसे नफरत हो जाएगी, लिहाजा इस बात का खास ख्याल रखें। और फिर उसके बाद जब हो जाए, अब आप उतरने वाले हों तो दाएं की तरफ उतरें, इससे औलाद नरीना पैदा हो सकती है। और अगर बाएं तरफ उतरेंगे, यानी अपने से दाएं की तरफ, अगर आप दाएं करवट की तरफ बढ़ करके उतरते हैं तो औलाद मुजक्कर यानी मर्द पैदा हो सकती है, लड़का पैदा होगा, और बाएं की तरफ उतरेंगे तो लड़की पैदा हो सकती है। तो आपको जिसकी ख्वाहिश है आप उस तरह कर सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला वैसा होगा। फिर अगर कोई शख्स फैमिली प्लानिंग करना चाहे, यानी अब वो चाहता है कि अभी औलाद ना हो, या एक बच्चा अभी हो गया है, अब एक बच्चा जब हो चुका है तो अभी बच्चा दूध पी रहा है माँ का और दूसरे बच्चे का हमल नहीं ठहरना चाहिए, अगर वो चाहता है तो ऐसी सूरत में जो एहतियाती तदबीरें हैं वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। एहतियाती तदबीर जैसे कि कॉन्डोम का इस्तेमाल किया जा सकता है, गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं, यानी कि मानियाई हमल गोली जो पिल्स जो होती हैं जिससे कि हमल ना ठहरे, वो है तो वो भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। और इसी तरह कॉन्डोम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कॉपर्टी भी इस्तेमाल की जा सकती है, मगर उसके लिए शर्त यह है कि कॉपर्टी इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है कि उसका शौहर डॉक्टर हो, क्योंकि गैर के सामने बगैर किसी जरूरत के अपनी शर्मगाह खोलना जायज नहीं है। तो उस औरत के लिए भी जायज नहीं होगा कि किसी दूसरी औरत की डॉक्टर सही, किसी दूसरी लेडी डॉक्टर के सामने वो अपनी शर्मगाह नहीं खोल सकती, लिहाजा वहां पर कॉपर्टी लगाने की